Hey guys, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about Gautam Buddha and his life. Gautam Buddha, who was the founder of Buddhism. About his life we are going to discuss in this video. सबसे पहले इस वीडियो में हम इंग्लिश में बात करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले इंग्लिश में. गौतम बुद्धा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न इन 563 BC, विच इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड डेट or year. There may be texts where this date may differ from what I am telling you. And he was born on Vaisakh Purnima day at Lumbini Van, which is in Nepal, in Sakya Kshatriya clan. His father Suddhodana was the republican king of Kapilvastu, and mother Mahamaya was a princess of Kolya Republic. After his mother's early death, he was brought up by his stepmother and aunt Mahaprajapati Gautami. His father married him at an early age to Yashodhara, princess of Shakya dynasty, from whom he had a son Rahul. He had four sites during his lifetime, which were the turning points in his career. These four sites were: first of all, he saw an old man, a deceased person, a dead body, and an ascetic. It is said that his father kept him away from all the worldly pains. So he was not familiar with any kind of pain in his life till these moments. So when he went out and he saw an old man and then a deceased person, then a dead body and an ascetic, these were the turning points of his life. At the age of 29, he renounced home, and this was his Mahabhinishkraman, which means the great going forth, and became a wandering ascetic. His first teacher was Alara Kalam, who was a Sankhya philosopher from whom he learnt the technique of meditation. His next teacher was Udrak Ramputra. At the age of 35, under a peepal tree at Uruvela, that is Bodh Gaya, on the bank of river Niranjana, he attained nirvana, that is enlightenment. After 49 days of continuous meditation, now he was a fully enlightened person, or you can call that he became Buddha or Tathagat. Buddha delivered his first sermon at Sarnath to his 5 disciples. This is known as Dharam Chakra Parivartan, which means the turning of wheel of law. He died in 483 BC at Kushinagar, which is a village in Kushinagar, which is a village in district UP. This is known as Mahaparinirvana, that is final blowing out. During his lifetime, there were many incidents, or there were some notable things. For example, there was his horse, which was known as Kanthak. There was his charioteer, whose name was Channa, and there was a girl named Sujata, who was a farmer's daughter, who gave him rice milk at Bodh Gaya. And Buddha's other names were Gautam, which was his clan name, Siddharth, which was his childhood name, and Shakyamuni, which was another name he got in his lifetime. In all the events of his life were denoted by some symbols. For example, his birth, that is Janam, was denoted by a lotus and a bull, and his renunciation, that is his Mahabhinishkarmana, was denoted by a horse. His Nirvan, that is enlightenment or Sambodhi, was denoted by a Bodhi tree, and his Dharam Chakra Parivartan, that is his first sermon, was denoted by, or is denoted by, a wheel, and his Mahaparinirvan, that is his passing out or death, is denoted by a stup. So these are the various symbols associated to his various phases of life. So this is about Buddha's life. अब यही बातें हम हिंदी में करते हैं. सो हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, जो फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के. ही वॉज बोर्न इन 563 BC. अब ये डेट हो सकता है कि आपके टेक्स्ट और मेरे कहे में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है इस डेट में, बट वाइडली एक्सेप्टेड यही ईयर है कि 563 BC में उनका जन्म हुआ था. कब हुआ था? वैसाख पूर्णिमा का दिन था. और कहाँ पे हुआ था? लुम्बी वन में हुआ था. लुम्बी वन क्या है? एक जगह है नेपाल में. और किस क्लैन में हुआ था? शाक्य क्षत्रिय क्लैन में उनका जन्म. उनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो
कपिल वस्तु के राजा थे और उनकी माता का नाम था महामया, जो एक प्रिंसेस थी कोलिया रिपब्लिक। उनकी माता की जल्दी ही मृत्यु हो जाने के कारण उनको जो पाला पोसा है तो उनकी स्टेप मदर ने पाला पोसा, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। उनके पिता ने उनकी मैरिज जल्दी ही छोटी ही उम्र में कर दी थी। कहाँ किससे की थी? तो यशोधरा से उनका विवाह कर दिया गया था, जो कि शाक्य डायनेसिटी की प्रिंसेस थी, और यशोधरा से उनका एक पुत्र था राहुल। उन्हें अपने जीवन में 4 ऐसे दृश्य देखने को मिले जिस उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो 4 ऐसे दृश्य थे। कौन कौन से? जैसे उन्होंने एक बुज़ुर्ग को देखा, उन्होंने एक डिजीज़्ड पर्सन को देखा जिन्हें बीमारी लगी हुई थी, उन्होंने एक डेड बॉडी देख ली, और एक एस्थेटिक को मीन्स एक सन्यासी को देखा। तो इन 4 दृश्यों को देखकर उनका लाइफ का जो 4 दृश्य थे ना, उनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता ने ना उन्हें हर तरह के दुख से दूर रखा था उनके लाइफ पीरियड में। उन्हें पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं था कि बीमारी क्या होती है। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी तो उनकी लाइफ जो थी ना वो बिल्कुल बदल गई थी, उनकी सोच बिल्कुल बदल गई थी। एट द एज ऑफ 29, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो चले गए अपनी महाभिनिष्कर्मणा के लिए, और एक जो सन्यासी होते हैं ना वो बन गए। ठीक है, महाभिनिष्कर्मणा क्या होती है? जो भी मतलब आगे चले गई, वो जो सारी दुनिया थी उससे आगे चले गए थे। ठीक है, उनके पहले टीचर कौन थे? अलारा कलमा थे, जो सांख्या फिलोसफर थे, जिन्होंने उन्हें मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई थी कि कैसे मेडिटेशन करते हैं। उनके नेक्स्ट टीचर जो थे वो थे उद्रक रामपुत्र। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो निरंजन नदी के किनारे था, और कहाँ पे था? उरुवेला, जो कि जगह है बोध गया में। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की और उन्हें वहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण क्या होता है? एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ठीक है, आफ्टर 49 डेज़, 49 दिन उन्होंने लगातार मेडिटेशन की, तो वो जो थे ना उसके बाद एनलाइटन हो गए थे। मीन्स वो जो एक होता है ना बुद्धा बन जाता है इंसान, तो वो बुद्धा बन गए थे, तथागत बन गए थे। बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन था वो सारनाथ में दिया था, और 5 डिसाइपल्स थे उस समय उनके, उनको उन्होंने अपना पहला सरमन दिया। और इस सरमन को कहा जाता है, इस चीज़ को, जो ये कंसेप्ट था, जो सरमन देने का जो चीज़ थी, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब कि जो लॉ का जो व्हील होता है उसको घुमा दिया गया था। ठीक है, 483 BC के समय में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, जो एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। और कहा जाता है कि इस जो इनकी मृत्यु का जो कंसेप्ट है इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मीन्स वो इस दुनिया से चले गए। ठीक है, उनके जो जीवन काल में कुछ ऐसे नाम हुए हैं जो याद करने ज़रूरी हैं। जैसे उनके घोड़े का नाम, जिसका नाम था कंथक। उनके जो चैरियटियर जो घोड़ा चलाते थे, रथ चलाते थे, उनका नाम जो है चन्ना। उनकी एक फार्मर की एक डॉटर थी सुजाता, वो थी जिन्होंने उन्हें राइस मिल्क दिया था बोध गया में। ठीक है, और गौतम बुद्ध के अपने नाम भी कुछ याद करने वाले हैं। जैसे गौतम जो उनका क्लैन नेम था, सिद्धार्थ जो उनका बचपन का नाम था, और शाक्या मुनि भी कहा जाता है उन्हें। इसके अलावा उनकी लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको कुछ सिंबल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि उनके जन्म को लोटस फूल से या फिर बुल से एसोसिएट किया जाता है। उनकी जो रिनंसिएशन थी, मीन्स जो महाभिनिष्कर्मण था, उसको एक घोड़े से एसोसिएट किया जाता है। मतलब जब वो घर छोड़ के चले गए थे उस चीज़ को, जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उसके अलावा जो उनका निर्वाण था, एनलाइटनमेंट थी, उसको बोधि ट्री से एसोसिएट करते हैं। उसके अलावा उनका जो धर्म चक्र परिवर्तन, मीन्स टर्निंग ऑफ व्हील, को एक व्हील से एसोसिएट करते हैं। जो उनका पहला सरमन था उसको एक व्हील से एसोसिएट करते हैं। और इसी तरह एक उनके जो महापरिनिर्वाण, मीन्स जो उनका मृत्यु था, जो उनकी पासिंग आउट थी, उनको एक स्तूप से एसोसिएट करते हैं। तो ये थी बात गौतम बुद्ध के बारे में। थैंक यू सो मच।